Hello students. So today our topic is production of transgenic mice. Okay, so as it is, this topic is in your syllabus. So we'll start with what is transgenic mice. We have already done the definition of transgenesis. That is substituting the original gene with the desired gene. That is transgenesis, right? So what is transgenic mice? Transgenic mice is mice in which we have substituted the original gene means the wild type gene in the mice. We have substituted that or replaced that with the gene of interest. Okay, so gene of interest हमें already पता है कि क्या होता है. जो भी हमें म्यूटेशन क्रिएट करनी है, that is our gene of interest which we are going to inject in that particular mice. Okay, so this technique is basically applicable in molecular biology, cell biology and genetic engineering. What is the use? As all other recombination technologies, it is also useful in creating vaccines or new for drug designing, for designing new drugs for any particular disease or for gene therapy. For all these things we can use this transgenesis, because we know we use this mice, only mice. Why we only use mice for all these kind of experiments? Because they produce eggs, they give offsprings. I think within 20-25 days they produce eggs, right? So their reproduction cycle is very quick, so we can easily get their offsprings quickly, and we can like screen the offsprings so whether, to check out whether the gene is present there or whether the mutation has been created or not. Okay, so two things we need here in transgenesis. The one is the gene of interest, okay, the one which we are going to insert into that mice, and the another is the gene to be substituted. अब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ सब्सटीट्यूट करनी है, दैट जीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस होगी, जो जीन होगी, उसका कंटेंट होगा, दैट वुड बी सिमिलर टू द जीन टू बी सब्सटीट्यूटेड. जिसके साथ आपने उसको रिप्लेस करना है उस जीन के सिमिलर होना चाहिए. इफ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट और टोटली ऑपोजिट काइंड ऑफ जीन, देन द माइस विल नॉट सर्वाइव. Okay, so that is the problem. That's why we have to use a similar kind of gene which we can use to replace the wild type of gene. Okay, so if you add any gene which is totally different in its function, which is totally different in its protein expression, then your mice will not survive. Okay, so यहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? बेसिक टेक्नोलॉजी कौन सी माइंड में आती है जब हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं? तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमने यूज़ की हुई है? सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज recombinant DNA technology. We have done that, right? So recombinant DNA technology में क्या था? हम म्यूटेशंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, और उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रही थी. जो ओरिजिनल जीन्स थी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिक्स हो रही थी, मिक्स एंड मैच हो रही थी, वेरिएशंस हो रही थी, रिकॉम्बिनेशन हो रही थी, शफलिंग हो रही थी, जीन शफलिंग हो रही थी, राइट? सो यहाँ भी सेम चीज़ होनी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द सेम प्रोसेस हियर. Here we won't use that technique. Here we will use a natural technique. हमने यहाँ पे natural technique यूज़ करनी है, हमने डायरेक्टली माइस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है, राइट? सो here the technique is a bit different, but the principle is same, that recombination will occur and the variation will be there. We'll get the mutation of our interest by inserting the gene of interest. Okay, so इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका ट्रांसजेनेसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक इसका स्टेप है, दैट इज़ आपके पास एक माइस है, उसका आपके पास एम्ब्रियो होगा, उसका एग होगा. उस एग में एक आपके पास होगा, दिस इज नॉट प्रोन्यूक्लियस, दिस इज प्रोन्यूक्लियाई. ओके, इन दैट एग देयर विल बी अ एग प्रोन्यूक्लियाई एंड देयर विल बी अ स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई. जब एग्स एंड स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वो सेल्स की ग्रोथ होती है उसमें, राइट? सो सेम विद माइस. जब आप एक आपके माइस का एम्ब्रो लेंगे, माइस का सेल लेंगे, उसमें एक एग प्रोन्यूक्लियाई होगा, दैट इज अ माइस प्रोन्यूक्लियाई, एंड अनदर इज अ स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई विद विच वी आर गोइंग टू फर्टिलाइज इट. सो दिस इज अ सेल. ओके, after fertilization what will happen? Even in humans, after fertilization, what happens after 4-5 days of fertilization? Blastocyst is created. Blastocyst is a phase where the inner cells and outer cells they separate and they move towards forming the organs, their coverings, all those things, right? So they slowly and steadily they develop. So within 4-5 days the blastocyst stage is reached. Here we can inject, when this sperm and egg they fertilize na, what we can do, we can inject the foreign DNA or we can inject the gene of our interest. ठीक है, अब ये माइस का जो जीनोम है, इसमें अपना हमने हमारे इंटरेस्ट का जो
डीएनए है या जीन है, हमने उसको इंजेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल. वी हैव डन दैट माइक्रो इंजेक्शन टॉपिक. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, इट्स द सेम टेक्निक. ओके, सो इसमें आपने एक माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली माइस में ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है. सो इस डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, as you can see this is a chromosome, structure of chromosome, so this is a pair of chromosome, right? so इस chromosome में let's suppose अगर हमने ये एक पर्टिकुलर जीन है जिसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है, और हमने ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाए एंड दिस शुड गो आउट, नॉक आउट कर देना है, हमने इसको टोटली बाहर निकाल देना है, राइट? सो वंस ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिप्लेस कर देता है तो ये कहाँ पे जाएंगी, जो एग्जिस्टिंग उसकी जीन थी ऑलरेडी, वाइल्ड टाइप जीन थी, वेयर इट विल गो, इट विल स्टे देयर इन द सराउंडिंग्स. सो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वंस आपने ये म्यूटेशन क्रिएट कर दी, आप इसको इंजेक्ट करोगे माइस में, वो माइस फर्टिलाइज माइस होगा, वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स अपने देगा. उन न्यू ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा, आपकी डिजायर्ड जीन सेम लोकेशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एंड दिस डिजायर्ड जीन that should be similar to target gene. Do remember this can't be totally opposite to target gene. I'm not saying same, but it should be at least similar to some extent so that the mice can survive. Okay, let's suppose if you add any such gene which is not compatible and you have inserted that, you have injected that, suddenly it will cause turbulence in the survival of that mice, right? So we have to use a similar target, similar gene. Okay, सो इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में आपका डिज़ायर्ड म्यूटेशन क्रिएट होगी. 3-4 जनरेशन तक ठीक है. इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक क्या है कि 3-4 जनरेशन तक तो ठीक है, लेकिन दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ रिकॉम्बिनेशन. उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रही है. सो आफ्टर 3 or 4 जनरेशन व्हेन द सेम माइस विल ब्रीड, व्हेन उनकी मेटिंग जब होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज देयर. सो यहाँ पे जो आपके पास जीन थी, वाइल्ड टाइप जीन थी, जो यहाँ से निकली है, दिस इज लाइंग डाउन समवेयर इन द साइटोप्लाज्म और समवेयर फ्रॉम वेयर इट कैन गेट रिप्लेस्ड अगेन. सो दोबारा से वो रिकॉम्बिनेशन हो सकती है कि वाइल्ड टाइप जीन दोबारा से आ सकती है. सो इट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल, 100% इसके चांसेस नहीं है. आफ्टर 3 or 4 जनरेशन इट मे कम आउट एज द ओरिजिनल और द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप माइस. अब ये आपने जो सारा प्रोसेस किया, आपने जीन्स को रिप्लेस किया है, ओके, न्यू जनरेशन आपको मिल गई है, ऑफस्प्रिंग्स मिल गया है. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द डिजायर्ड जीन और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू कैन यूज़ द PCR मेथड. PCR से क्या होगा, आप DNA एम्पलीफाई करोगे तो आपको जीन एक्सप्रेशन उसका एम्पलीफाई होकर मिलेगा, एंड यू कैन ईजिली फिगर आउट दैट वेदर इट हैज़ बीन चेंज्ड विद द, वेदर इट हैज़ बीन म्यूटेटेड विद दैट और नॉट. So 10 to 40% of mice, if you consider 100 mice you have infected with the desired gene, out of those 100, 10 to 40% will be there which will have those transgenic genes, those mutated genes, the gene of interest. Only 10 to 40%. Rest of the mice, they will have the original wild type gene only. Okay, so this is the basic procedure which we use in transgenic mice, like basic principle, the basic concept of transgenic mice कि कैसे हमने transgenic mice बनाया. Transgenic mice क्यों कह रहे हैं, because we are adding new genes, adding gene of interest in that. We are doing transgenesis. Okay, so next in your syllabus is the embryonic stem cells, the role of embryonic stem cells in transgenic mice, how we can produce transgenic mice with the help of embryonic stem cells. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में अगर हम बात करें, सो व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. इफ यू सी दिस वन इज अ ब्लास्टोसिस्ट, लाइक वंस द एग एंड द स्पर्म हैव फर्टिलाइज्ड इन द माइस, देन आफ्टर 4 or 5 days or 6 days, let's say after 5 or 6 days, that fusion, like अगर यहाँ पे आप देखो ना कि एग एंड स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, ठीक है, सो ये जो इनकी फर्टिलाइजेशन होगी एक सिंगल एग क्रिएट करेगी, राइट. तो जब 2 सेल्स फ्यूज करते हैं आपस में, that will come like this. After 5 days of fertilization, that particular fertilized cell will look like this. ठीक है, वहाँ पे इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट. सो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा बच्चे, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल मास, एंड दिस इज द इनर सेल मास.
इसमें एक आउटर सेल मास है, इनर सेल मास है, इन दोनों का अपना रोल है। आउटर सेल मास एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स में डेवलप हो जाता है, एग योक में हो जाएगा और डेवलप फर्दर, सो डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाएगा, लाइक आउटर लेयरिंग्स बनाएगा। एंड द इनर सेल मास विल मेक द सॉफ्ट ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक द माइस स्किन, then its soft organs covered by skin, and then the gastrointestinal tract. So this is the role of outer cell mass and inner cell mass. What else is the role of outer cell and inner cell mass in embryonic stem cells in transgenic mice? जो भी आपने यहाँ पे ट्रांसजेनेसिस करनी है, you are going to do that in the inner cell mass because they are also known as the, this inner cell mass is also known as the embryonic stem cells. So अगर हम embryonic stem cells की बात कर रहे हैं in transgenic mice, which are these embryonic stem cells? This inner cell mass in the blastocyst stage. So blastocyst stage में जो ये inner cell mass है, हमने इनको ट्रांसफेक्ट करना है. These are the embryonic stem cells. Okay? इनको ही क्यों करना है? Because they are going to develop in further organs ना. So that in that way we can create mutation in that mice, we can create transgenic mice. अगर हम उसकी मेन जो उसकी रूट है जहाँ से सारे ऑर्गन्स बने, if we are going to infect that, only then we will get the transgenic mice. Okay, so next are the steps. क्या steps हैं अगर आप embryonic stem cells के थ्रू अगर आप transgenic mice बना रहे हैं, तो which are the steps? So this is a very interesting diagram बच्चे. If you can understand this diagram, then you can definitely write down 2 or 3 pages on this diagram. You can simply elaborate. So easily, if you get any question like of 7 marks or 10 marks, whatever is there, if you get such a long question for this topic, just do remember this diagram. Try to understand it. Don't cram it. आपको मैंने बेसिक्स बताया कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, उसकी इनर लेयर क्या है, उसकी आउटर लेयर क्या है, उनका क्या रोल है. इफ़ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू कैन ईजिली कवर दिस होल टॉपिक. ओके, सो स्टेप्स क्या हैं? हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं. नंबर 1, यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नंबर 1 एंड नंबर 2. आई विल यूज 2 डिफरेंट टर्म्स. सो हियर वी हैव एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन अ कल्चर प्लेट, एंड नाउ वी हैव टू infect those embryonic stem cells with the cloned DNA. Cloned DNA means the gene of our interest. We have to infect with that. Okay. So once we add this cloned DNA in the embryonic stem cells, after fertilization they will mix up, transfection उसमें होगी, ठीक है. And when they will reach when their egg and sperm will fertilize after 4-5 days or 6 days, when they will reach the blastocyst stage, we are going to add the gene of our interest from here. ओके, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने कहाँ पे डालने हैं? इन सॉरी, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग. ओके, सो दिस इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. यहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, यू हैव फ्यूज्ड देम, उनमें फर्टिलाइजेशन हुई. सो व्हाट इज प्रेजेंट हियर? यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे मिक्स हो गए हैं. सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ आपके डिजायर्ड जीन फ्यूज हो गई है. ये जीन्स आपको चाहिए, ठीक है. सो दीज आर फ्यूज नाउ. सो यहाँ पे जो ये आपका मिक्सचर है, दिस पर्टिकुलर डीएनए इज मिक्सचर ऑफ द डिजायर्ड जीन एंड द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपने माइस में से लिया है, ठीक है. सो ये एक मिक्सचर हो गया इनका. अब आपके पास वेरिएशन आ गई, म्यूटेशन आ गई है. जो एक्चुअल वाइल्ड टाइप उसका स्टेम सेल्स थे, उसमें आपके पास म्यूटेशन आ गया, आपकी डिजायर्ड जीन आ गई है. Now step number 2, where you are going to use separate, like different embryonic stem cells, the new one, fresh embryonic stem cells from another mice, ठीक है. So दूसरे mice में से आपने दोबारा से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के स्टेम सेल्स लिए, ठीक है. वंस आपने यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के स्टेम सेल्स लिए, सो आपके पास जो यहाँ पे रिजल्टिंग थे ना, जो फ्यूज्ड थे, मिक्सचर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल 1 प्लस क्लोन डीएनए का जो मिक्सचर सेल्स थे, उन मिक्सचर सेल्स को आपने यहाँ पे ऐड कर देना with the help of a micro injection. You have to inject that. So ये cells आपके आ गए हैं मिक्सचर वाले, ठीक है, जो आपने इसमें म्यूटेशन दी थी. These are the mutated cells. आप जब इन म्यूटेटेड सेल्स को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एक फ्रेश माइस के ब्लास्टोसिस्ट में अगर ऐड करोगे, यू हैव टू इंजेक्ट दोज वंस इन दी ICM, इनर सेल मास. इनर सेल मास में आपने अगर इसको एक बार इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इसमें ट्रांसफेक्शन होगी, ये सेल्स इसमें ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफेक्शन होगी, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, यू हैव ऑलरेडी डन, सो सेम प्रोसेस विल बी देयर. अब इनके सराउंडिंग में अगर सेल्स हैं, सो दे विल पिक इट अप. एक बार इन्होंने पिक कर लिया तो इनका क्या हो गया? रिकम्बाइन हो गया. जो इनका जेनेटिक कंटेंट था दैट विल बी रिकम्बाइन. सो नाउ वंस द जेनेटिक कंटेंट इज रिकम्बाइन,
यू कैन इम्प्लांट, अब इसमें वेरिएशन आ गई है, इसमें ट्रांसजेनिसिस हमने करनी है, सो यू कैन इम्प्लांट दीज जेनेटिक cell this genetic content, the mutated one, from the first embryonic stem cells and the clone DNA. So यहाँ पे ultimately you have got your desired gene here incorporated into the inner cell mass. So once you implant this, implant मतलब किसी, जैसे हम in vitro fertilization की भी बात करते हैं, so one mother give her egg and father gives his sperm, okay, they fertilize it, and those who can't bear the kid, they hire a surrogate mother. It's very common these days, right? So rich people, even the normal people are doing that. Sometimes someone have any kind of medical issue, so what they do, they hire a surrogate mother. In the same way, in mice we hire not hire, but we get a surrogate mother, surrogate mice, okay? ये surrogate mice क्या करेगी, किसी और mice का fertilized blastocyst लेगी अपने अंदर, okay, and उसको space देगी to grow. Once this fertilized blastocyst with the gene of interest will go here in this mice, it will grow for further days for whatever its gestation period, and after this it will bear its offsprings. ठीक है, अब ये जो हमारा माइस है, हम इसको क्या कहेंगे, दिस माइस इज नोन एज काइमेरिक माइस. वाई? बिकॉज दिस माइस हैज अ मोजेक ऑफ जीन्स. इसके पास मोजेक है. मोजेक आई थिंक मैंने आपको पहले बताई थी, शायद आपको नहीं बताई थी या किसी और क्लास में, बट मोजेक इज अ टर्म विच वी यूज वेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जीन्स, ओके, or mixture of anything. Even in simple English we use mosaic word for mixture of anything, like variation is there. So here this is a chimeric mouse because you have the mosaic of genes here. So you have your gene of interest, your transgenic genes are there. So this one here you created transgenic genes, here you created transgenic genes, those transgenic genes are implanted here. Now they will give birth to a new offspring. But this mice in which this surrogate mother in which you have implanted those transgenic genes, this mice will have its own genes as well. इसके पास अपनी खुद की genes भी होंगी, ठीक है. इसके पास implanted genes हैं, transgenic genes हैं, plus this blue one, the red ones are the transgenic genes and the blue one is the its own wild type gene. So it will have mixture of both. इसके पास दो तरह की genes होंगी. So when you will mate this, when you breed this mouse, this chimeric mouse with the नॉर्मल वाइल्ड टाइप माउस, सिंपल किसी माउस के साथ जब आप इसकी ब्रीडिंग करोगे, इनके एग एंड स्पर्म फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी. हियर यू कैन से दिस इज अ नॉर्मल माउस, काइमेरिक माउस. वी आर गोइंग टू, दिस साइन इज फॉर ब्रीडिंग, सो वी आर गोइंग टू ब्रीड देम. सो दे विल, देयर एग एंड स्पर्म that will fuse. Once that egg and sperm will fuse, that goes into the blastocyst stage. Again we will implant them in a new rat. इसको हम न्यू रैट में इम्प्लांट करेंगे माउस में. वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी. दिस नेक्स्ट जनरेशन इज द F1 हाइब्रिड. सो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन F1 हाइब्रिड दैट विल हैव ऑल द ट्रांसजेनिक जीन्स. सो हियर यू कैन सी रेड ones are the transgenic genes, okay, and blue ones are the wild type जीन्स. सो इसमें मिक्सचर था, लेकिन जब आप इसको नॉर्मल के साथ करोगे, सो वाइल्ड टाइप जीन्स कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को. सो ओनली ट्रांसजेनिक जीन्स विल एम्पलीफाई, ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी, प्रोपोगेट हो जाएंगे. सो वंस दिस ट्रांसजेनिक जीन्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट माउस, एनी अदर माउस, दे विल ले डाउन, लाइक इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, इनसे क्या हो गया, एक नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन F1 हाइब्रिड. F1 क्यों कह रहे हैं हम इसको F1 क्यों नहीं कह रहे, because it was a chimeric mouse. Now this one is F1 because this is providing all the genes are transgenic here which we needed, जिसकी हमें ज़रूरत थी. तो यहाँ पे आके हमारा एक्सपेरिमेंट सॉरी यहाँ पे आके हमारा एक्सपेरिमेंट में हमें फर्स्ट जनरेशन मिली है विच हैव ऑल द ट्रांसजेनिक जीन्स, ठीक है. सो दिस इज F1 हाइब्रिड. सो ये जीन जो माइस है हमारा, दिस इज transgenic mice. Remember, this is chimeric mice which has mixture of transgenic and wild type genes, and this is transgenic mice which has all the transgenic genes. So if you pick 100 of these mice, if you pick them, if you they will give more sperms and eggs, then they will fertilize with other mice, and if you check those 100, more than 50% of progeny will have new genes, ठीक है. either 50% or at least 50% or more than 50% will have that transgenic genes only.
So more than 50% will be your transgenic mice. So this way your experiment will be successful. Okay, by this I have covered the simple transgenic process and the process involving the embryonic stem cells. There is another diagram you can follow. Okay, so this one is like for हम इसको live कैसे कर रहे हैं, naturally कैसे कर रहे हैं, in mice we are showing all that, but this one is showing the whole process of lab based work. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are taking pre-implantation embryo हमने लिया है. Pre-implantation embryo means that in the blastocyst stage. Okay, before implantation एम्ब्रो क्या होता है, पहले फर्टिलाइज करते हैं, एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो ट्रेवल करके यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, वहाँ पे स्टिक हो जाता है, एक जगह मिल जाती है. आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, सो बिफोर दैट इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस वी आर टेकिंग द एम्ब्रियो विच इज फर्टिलाइज, इन विच द egg and sperm has been fertilized, and we are going to culture that in a culture plate, in a petri dish. We are going to culture that. This is a cell culture showing the wild type genes. ये wild type हैं, ठीक है. Now we will transfect these wild type genes with the desirable gene. So जो आपके desirable gene है, जो आपका gene of interest है, you are going to infect that. Okay, so gene of interest आपने इसमें add कर दी culture plate में. So wild type gene, these will the transformation will be there. Some of the cells will pick these desirable genes, some won't. So इन्होंने pick नहीं किया. So this one is transfected. ठीक है. So once transfection is done, what you will do, you will select for the transfected clones. Now you have to select. आपको filter out करना है. आपको पहले भी बताया था filter out कैसे, selection कैसे होगी, कि जो transfection नहीं हुई है उनको wash out कर देना है, and those who have been transfected, those will stay in the culture plate. ठीक है. सो जो ट्रांसफेक्ट हुए थे वो स्टे करेंगे, उनको हमने इंक्यूबेट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स. आफ्टर दैट इंक्यूबेशन पीरियड दे विल ग्रो विद इन दैट इंक्यूबेशन पीरियड. सो आफ्टर दैट इंक्यूबेशन पीरियड यू विल सी दैट दे हैव ग्रोन, एंड देन यू कैन co-culture. Co-culture means you can take another embryo in the blastocyst stage, and you can, like आपके पास एक यहाँ पे हो गई थी ना, जैसे यहाँ पे हुआ था आपके पास, ठीक है, एक आपने पहले म्यूटेशन किया, आपने फिर से उसको एक और ब्लास्टोसिस्ट में डाला. सेम वे इन द लैब में हम क्या करेंगे, पहले हम इनको म्यूटेशन हमने कर लिया, इसमें डिज़ायर्ड जीन डालिए, डिज़ायर्ड जीन को हमने एम्पलीफाई कर लिया, उनकी ग्रोथ कर ली, एंड आफ्टर दैट हमने फिर से उसमें एक ब्लास्टोसिस्ट डाला किसी और माइस का. वंस आपने वो ब्लास्टोसिस्ट उसमें ऐड किया, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सरोगेट मदर में, सरोगेट माइस में. ठीक है, सरोगेट माइस में करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसजेनिक माइस आ जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगी. फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मीन्स लास्ट में आपको क्या था कि मोर एटलीस्ट 50% वर शोइंग द न्यू जीन. हेयर यू डोंट नो हाउ मेनी विल शो न्यू जीन, द ट्रांसजेनिक जीन. ओके, बट द थिंग इज, इसमें सभी जीन्स ट्रांसजेनिक ही होंगी. जितने, अगर आपके पास 30% माइस हैं, दोज हु हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांसजेनिक माइस, 30% में जो कंटेंट होगा, जो जीन्स होंगी, वो प्योरली ट्रांसजेनिक ही होंगी. ठीक है. अनदर वे टू डू दैट इन लैब इज, डोनर फीमेल्स ले लो, माइस की डोनर फीमेल्स ली, उनके एग्स आपने लिए, उनको सुपर ओव्यूलेशन में डालना है, लाइक उनकी मेटिंग करवानी है विद अदर माइस. सुपर ओव्यूलेशन होगी, उसमें ओव्यूलेशन होगी तो एग्स क्रिएट होंगे उनके ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. सो हमने एक ऐसे स्टेज तक पहुंचना है जहाँ पे वी कैन हार्वेस्ट मोर एंड मोर एग्स फ्रॉम दैट माइस. सो वंस वी हार्वेस्ट द एग्स, हमने एग्स एक्सट्रैक्ट कर लिए माइस में से, वी विल ट्रांसफॉर्म दोज एग्स इन दी ब्लास्टोसिस्ट ऑफ अनदर माइस. हमने किसी और माइस, अब इसमें हमने ये डाल दी अपनी डिज़ायर्ड जीन. ठीक है, तो इसमें हमने डिज़ायर्ड जीन डाली और यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक है, म्यूटेशन होगी. तो इसमें सिंगल स्टेप हम कर रहे हैं, एक ही बार हुआ है. इसको सरोगेट मदर में करेंगे, काइमेरिक माइस बनेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे था, फर्स्ट स्टेप में काइमेरिक माइस था, जब उसको दोबारा ब्रीड कर रहे थे तो हमारे पास ट्रांसजेनिक माइस आ रहा था. सेम ऐसे यहाँ पे है, देयर आर 2 स्टेप्स हेयर, सो वी आर गेटिंग द ट्रांसजेनिक माइस. बट हेयर अगर हम उसको फर्स्ट स्टेप में ही करेंगे तो हमारे पास काइमेरिक माइस आएगा विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी. काइमेरिक माइस, once again बच्चे, do remember chimeric mice is the mice where not all the cells will be transgenic, जहाँ पे सारे ट्रांसजेनिक नहीं होंगे. ओके, दैट विल बी अ मिक्सचर. इसके आपको टर्म भी आ सकती है, व्हाट इज काइमेरिक माइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, एंड ट्रांसजेनिक माइस वेयर ऑल द जीन्स विल बी ट्रांसजेनिक. ठीक है, सेम पूरा पर्पस इसका सेम है, पूरा फ्लो सेम है. ठीक है, सारे इसके स्टेप्स सेम है,
बट ये डायग्राम थोड़ी सी वैसे इंप्रेसिव लग रही है। आपने माइस क्रिएट कर दिया, ब्लास्टोसिस्ट को अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, इनका स्पर्म्स एंड एग की फ्यूजन दिखा दिया है। हियर आपने उसको लैब बेस्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया, बट द प्रोसेस इज सेम। आई होप योर basics are clear for transgenic mice, but still if you have any kind of doubt, any question, you can ask me anytime. All right, I don't want any doubt in your mind. If you get something, if you stuck somewhere, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, do watch this video again and again. Still you have problem, then you can ask me. Okay, thank you.